ऑपरेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू आर मैनेजिंग. सेकेंड, ऑपरेशन होने के बाद सर आपको पैसे भी आने चाहिए, तो बिलिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज. चलो बिल भी हो गया तो पेमेंट भी तो आना चाहिए, तो पेमेंट फॉलोअप इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज. एंड ये सब होने के बाद पता चलता है कि लास्ट स्टेज पे जाने के बाद पता चलता है कि साला बंदे ने इनवॉइस ही गलत भेज दिया. Hi everyone, welcome to Achiever Club. Today we have an MEP consultant, somebody who helps the construction companies to get their work done. Prashant, he is joining us from Pune, the birthplace of Shivaji, and he has automated his entire business. He is eager to share what all he has implemented in his team management, in his operations. So let's take a quick introduction of Prashant. Prashant, kindly tell us about yourself. Hello everyone, myself Prashant Barbade and founder director of New Infinite MEP Consultant. We based out of Pune and Mumbai. My journey started in this field as a plumber at site. Then job जैसे आगे जाता रहा, then I got promoted from plumber to draftsman, draftsman to engineer, engineer to department head, head of MEP. एंड देन फाइनली जब प्यार में लोग आते तो गलती कर देते हैं. तो ऐसे ही एक बार बात हो रही थी प्रतीक्षा की और मेरी. प्रतीक्षा इज माय वाइफ एंड ही सेड कि आप इतना अच्छा कर रहे हो तो अब खुद का क्यों नहीं करते हैं. तो बात ये थी कि हमने ऐसे ही बताया कि हमने आज ये हफ्ते 7.5 लाख रुपए के ड्राइंग बनाए एंड दैट्स हाउ इट गेट स्टार्टेड. So Great. basically we are into engineering consultancy field of electrical, plumbing, fire, and we are doing lots of project and every type of building that we have touched in last 10 years. Wow, wow. So project management is one of the difficult thing to crack. आपकी Yes. टीम कितनी बड़ी, आप एक बार बताएंगे व्यूअर्स को? Sir, right now we are 26 people in the team. पहले 2 साल तो हम अकेले ही थे. Everything doing myself. तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़े वैसे वैसे टीम भी बढ़ी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो गॉट क्वाइट डिफिकल्ट टू मीन्स जितना काम छोटा है उतना तब एक अकेला बंदा संभाल सकता है, बट आगे जाता है तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू मैनेज. सो वो एफर्ट्स से आप एमबीए प्रोग्राम में कैसे आ गए? आपने वेबिनार कवर अटेंड किया, किसी ने फ्रेंड ने रेकमेंड किया था, क्या स्टोरी है इसकी? सर इससे पहले बेसिकली एक और चीज मैं बताना चाहूंगा. बाय प्रोफेशन में कंप्यूटर इंजीनियर हूँ एंड ये जो मेरा पूरा काम है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में आता है. बेसिकली वी आर सपोर्टिंग एंटायर रियल एस्टेट इंडस्ट्री. अच्छा. यहाँ पर टास्क मतलब ऑटोमेशन का हमने कभी सोचा नहीं था, बट आई ऑलवेज थॉट कि ऐसा कुछ तो सिस्टम हो जिससे मैं मॉनिटर कर सकूं कि कौन क्या कर रहा है. मतलब एवरी टाइम कॉलिंग की भाई ये काम हो गया क्या, ये ड्राइंग गया क्या. मतलब सेम स्टोरी दैट यू आर टेलिंग मीन्स एवरीडे फायर फाइटिंग, एवरीडे फायर फाइटिंग. सो आई गॉट ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम के रील्स देख रहा था एंड सडनली योर रील्स पॉप अप, daily firefighting. I gone through. Instantly I registered. Next day, honestly, means fortunately, next day was the seminar, 10th of March. Same day, I purchased that MBA program. I started my journey. Means I was eager to implement all these in one day. Means if that possible, I could have. But as you said, it's a marathon. It's not a single run. Great. So challenges के बारे में बात करते हैं. The industry which you are coming from has tons of challenges. Yes or no? Yes, sir. Yes, right. sir. And you joined the MBA program to solve your business challenges. So Right. आपके challenges क्या, आप बताइए क्या क्या challenges थे, so that audience भी connect कर पाए and they can also understand on what benefit you got from the MBA program. So just tell us about your challenges. और अगर आपको screen sharing करके कुछ दिखा पाएंगे कैसे आपने उनको solve किया? Sir, challenge तो basically I'll share the screen, but before that I would like to share some very important. Means operation is one of the biggest challenge that you are managing. Second, operation होने के बाद सर आपको पैसे भी आने चाहिए, तो billing is the biggest challenge. चलो बिल भी हो गया तो पेमेंट भी तो आना चाहिए, तो पेमेंट फॉलोअप इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज. एंड ये सब होने के बाद पता चलता है कि लास्ट स्टेज पे जाने के बाद पता चलता है कि साला
बंदे ने इनवॉइस ही गलत भेज दिया। हम्म तो दैट वाज मींस that again I have to start from scratch for billing. So that is the biggest challenge we are facing. हम्म Third challenge was is that ki quotation making means when I was started my business I used to make my quotation within 30 minutes because अपने को पता है सर अपने services क्या है और scope क्या है। But when you are delegate to somebody तो हर चीज पूछनी होती है कि सर ये डालना है क्या, ये डालना है क्या, ये मीन्स शुड वी इंक्लूड और नॉट, दैट्स द स्टोरी। मीन्स 30 मिनट्स का टाइम गोज टू अराउंड मैक्सिमम 3 days। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि वो कोटेशन ना देने की वजह से भी काम चले जाते थे। तो पेमेंट भी तो टाइम से नहीं आ रही, प्रोजेक्ट में मैनेज नहीं हो रहा है, कोटेशन भी मैनुअली क्रिएट हो रही है। व्हाट एल्स? उसके अलावा दूसरा सबसे ये था कि सपोज एक काम बताया है तो वो काम पूरा हुआ है कि नहीं, पूरा हुआ है तो क्लाइंट को उसके अपडेट्स गए हैं कि नहीं। एवरीबडी एक्सपेक्ट की मेल किए तो आज के मतलब आज का तो एक ट्रेंड ही हुआ है कि आपने ईमेल किया तो यू हैव टू कॉल एंड इन्फॉर्म देम कि हमने कॉल किया है। सपोज कॉल नहीं किया तो एटलीस्ट यू हैव टू इन्फॉर्म देम ऑन व्हाट्सएप कि आपने वो ईमेल किया है। सो दीज आर द चैलेंजेस। मीन्स ऐसा हो जाता था कि काम भेजा है बट उन्होंने देखा ही नहीं, तो ना देखने की वजह से वो अप्रूव भी नहीं हुआ, वो अप्रूव ना होने की वजह से वो पेमेंट भी डिले हो गया। मीन्स इट्स इम्पैक्टिंग एवरी प्रोसेस फ्लो ऑफ माय एंटायर सिस्टम। और अकेला बंदा आप कहाँ कहाँ ध्यान देंगे सर। मीन्स वर्किंग मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जॉब टू इन एंटरप्रेन्योरशिप इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स 8 घंटे काम करो, देन शाम को आने के बाद सो जाओ 7 से 9, 7 से 9, 10, 11, देन 11 बजे रात को उठो, पूरा अपना कंपनी का पूरा रात से 11 से सुबह 4-5 बजे तक काम करो। दैट वाज द रूटीन फॉर first 3-4 years to build the business efficiently, because coming from economical background it's a hell lot of challenges। और अगर ऐसे ही जर्नी चलती रहती, अगर ये चैलेंजेस ना सॉल्व होते एमबीए प्रोग्राम में, तो क्या होता? अरे सर आज फॉर्चुनेटली मेरा 10th मैरिज एनिवर्सरी है एंड प्रतीक्षा को मैंने चैलेंज किया है। मीन्स आई प्रॉमिस्ड हर कि इसके बाद के 10 साल तो हम अच्छे से मीन्स विल हैव गुड मेमोरीज। मीन्स कल रात ही वी आर सिटिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट दिस इम्प्लीमेंटेशन एंड सेड कि क्या मेमोरीज है हमारे पास। सर 10 साल में मैंने सिर्फ एक ट्रिप किया है केरला का, दैट वाज द मेमोरी आई हैव क्रिएटेड। मीन्स वर्किंग for 19-18 hours a day for 10 years। और अब अगले 10 साल कैसा रहेगा? कितने ट्रिप्स होंगे अब? सर हर साल हम 2-3 ट्रिप तो कर ही देंगे सर। अभी मतलब जिस तरह से मेरा समय बच रहा है आई विल शो यू। मीन्स जो कोटेशन मेरा 3 दिन मतलब एक्सपर्ट होने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद जब बंदी वो चलिए कोटेशन आप बनाती है। दिखाइए, आप दिखाइए, स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाइए। यस यस एब्सोल्युटली सिस्टम्स सर। आप दिखाइए, वी विल कीप इट क्रिस्प। नेक्स्ट 10 मिनट्स क्विकली एक्सप्लेन क्या क्या सिस्टम्स आपने इंप्लीमेंट किए हैं डिटेल में, यस और उनका विल बेनिफिट गो बताइए। थ्रू स्टेप बाय स्टेप, आई विल शो यू सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर ये मेरा कमर्शियल प्रपोजल का गूगल ड्राइव का फोल्डर है। It's all aligned with the project number। Okay. Means when it comes a 23 series, it says कि ये 23 years का मतलब 2013 का प्रोजेक्ट है एंड प्रोजेक्ट नंबर ये कब आया है इसके डिटेल शुरू होते हैं। उसके अंदर इसके सारे डिटेल्स होते हैं कि क्या क्या प्रपोजल क्रिएट करना होता है। दिस इज द ओल्ड सिस्टम व्हाट वी आर यूज्ड टू, that I would like to share। This is the commercial proposal, these are the billing to details, और ये मेरे कमर्शियल डिटेल्स है। ये पूरा स्कोप मेंशन किया है, ये स्टैंडर्ड ही होता है बहुत बार प्रोसेसेस के लिए। तो क्या देन ऑटोमेशन किया है इसमें आपने गूगल फॉर्म से कनेक्ट किया है सर? नहीं, आई टेल यू, ये हमारा पुराना सिस्टम है जो हम यूज कर रहे थे जहां पर हमारा बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था एंड आई विल शो यू दैट इन 2 minutes कि हमने एग्जैक्टली क्या किया उसका ऑटोमेशन के लिए। तो ये हमारा पूरा डिटेल हो रहा था सब। इसके बाद ये सारे पेमेंट डिटेल्स और ये जो रेट कैलकुलेशन है ये टोटल अमाउंट है। यहाँ पर बहुत बार गलतियां हुई, मतलब इस तरह से हुआ कि हमने वो प्रोजेक्ट लॉस में भी उठाना पड़ा। अच्छा। तो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी फेस्ड एंड इसका सोल्यूशन सर हमने काफी अच्छे से निकाला। ये मेरा इंट्रानेट है सर।
Neo Infinity Operations. Very good. यस सर, न्यू इन्फिनिट ये मेरा कंप्लीट अपडेटेड इंट्रानेट है, और इसका जो सॉल्यूशन निकाला है सर हमने, ये सिंपल रखा है खाली। ये ऑटोमेशन का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर जो आपने बनाया उसका ये पूरा कंप्लीट सेटअप है मेरा। एक और फाइल ओपन करनी है मुझे। सर ये ऑटो कोटेशन टूल हमने बनाया, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल रहा है। इसमें सिंपल जो भी कोई लीड आती है या फिर कोई डिटेल्स आती है, दैट हैज टू बी फिल्ड बाय सेल्स पर्सन, मींस इट्स मी और माय एसोसिएट। You have to enter the contact person that is given by sure, contact number, email, company name, email ID, then company name you have to enter, then address, that is you have to enter for billing detail, state you have to details, then country wise, because इसका extension country wise भी होने वाला है, तो country का भी detail हमने capture किया है। very then nice. GST number that you have to enter correctly, project का नाम क्या है, that you have to Wow, residential project। such a detailed automation of quotation. Okay, so क्या होता है फॉर्म फिल करने में? सर इसमें इंडस्ट्री भी चूज करनी होती है, देन सोर्स, ये आपको लीड कहाँ से आई है ये, देन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया आपको एंटर करना है। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज होती है 25,000 स्क्वायर 2,50,000 का एरिया यू हैव टू डिटेल, अपलोड फाइल करनी होती है। इसमें सर्विसेज कौन सी ये आपको सिलेक्ट करनी होती है कि आपको कौन सी सर्विसेज करनी है। इसमें प्लॉट एरिया आपको एंटर करना है कि कितना प्लॉट एरिया आपका यहाँ पे यूज होने वाला है, और ये हमारे डिलीवरेबल से इसके ऊपर हमारा रेट तय होता है। तो वी जस्ट सिलेक्ट की गुड फॉर कंस्ट्रक्शन डिजाइन बेसिस रिपोर्ट BOQ and we'll go with the engineering design. These are the details that the project do required. प्रोजेक्ट टाइप क्या है, रेसिडेंशियल है, तो ये प्रोजेक्ट टाइप के हिसाब से हर एक रेट वेरी करते हैं, एंड इसका प्रायोरिटी हम हाई करके सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट होने के बाद मेरे एडमिन को व्हाट्सएप मैसेज जाता है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी हमने इसमें किया हुआ है, एंड ईमेल नोटिफिकेशन भी नोटिफिकेशन टूल से इसमें हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये लीड हमारा लीड फॉर्म में यहाँ जनरेट हो जाता है सर। ये लीड हमने जो अभी डिटेल डाला था यहाँ पे आ गया। ये शी हैज टू जस्ट स्क्रॉल इट डाउन फॉर वंस, the details, project number and details as per given format that is created. They just have to next sheet पे यहाँ पे आके उनको कुछ details fill करनी होती है। Same way they have to just enter the detail formula, revision number आपको manually डालना है, then ये रेट आपको रेट कैलकुलेटर से मिल जाएगा। तो आपने यहाँ एंट्रीज कर ली रेट की, प्राइसेस की, तो एंड रिजल्ट क्या निकलता है? प्रपोजल रेडी हो जाता है आपका? यस सर प्रपोजल इमीडिएटली रेडी हो जाता है। यहाँ पर सर ये प्रपोजल का रेट कैलकुलेटर इंजन है। यू हैव टू सिलेक्ट जो लेटेस्ट लीड है वो, एंड यहाँ पर ये सारे फॉर्मूलेज ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, एंड यहाँ पर उसका रेट ये आ जाता है सर। दैट सेम रेट टीम को यहाँ डालना होता है कि ये रेट डालना है, एंड दिस फील्ड दे हैज टू जस्ट कॉपी पेस्ट डाउन बिलो। आपने एक रेट डेटा भी शीट रखी हुई है? यस सर, ये रेट किस तरह से डिराइव होता है ना, ये पूरा एक मैकेनिज्म हमने डिजाइन किया हुआ है। मींस इट्स अ वेरी सिंपल, ये पूरा ग्रिड बना है, हर एक के पैरामीटर्स हमने मेंशन किए हैं कि क्या क्या डिटेल्स हमें देनी है, हर एक वेरिएबल्स जहां से मेरा रेटा डिराइव होता है दैट आई हैव कैलकुलेटेड। एंड यहाँ पे सिर्फ फाइनल प्रपोजल के जाने के बाद आपको ऑटोकैड का एक एक्सटेंशन रन करना है। यूज कर लिया इसे अच्छे से आपने? यस सर एंड सिंपली यहाँ पे 2 फॉर्मेट्स दिए हुए हैं।
जिसमें आपको 2 टाइप के प्रपोजल है, एमएससीबी का प्रपोजल है या फिर अपना रेगुलर प्रपोजल है, उस हिसाब से दे हैव टू सिलेक्ट एंड इट इज गेट मर्ज्ड एंड माय प्रपोजल गेट क्रिएटेड विद इन 3 minutes. Means I have tested this tool with my admin and it will take not more than 3 minutes to create after submitting my proposal. Means this is my greatest PDF, 100% correct and without any error. Means whatever the Wow. details I have entered, my proposal is ready within 3 minutes with sign, stamp, everything up to date. Means 100% करें. ये खुशी जो मुझे मिली ना सर, मीन्स आई कांट एक्सप्रेस. मीन्स जहां पर मेरा 3 दिन का समय जा रहा था, आई कैन क्रिएट कोटेशन इन 3 minutes. That is the automation what we have achieved in this, sir. Congratulations, Prashant, for such a great achievement. We would like to know, have you done any other automations or any Yes, other yes, system? we did. Show us that. Sir, for automation, we have set up our complete intranet over here. Firstly, accounting is the biggest challenge. क्या होता है सर, if you are not filing your GST on time, then you get penalized. I get penalized means मतलब मैंने लाखों रुपए भरे हैं सर GST समय पे फाइल ना होने की वजह से. क्यों फाइल नहीं हुआ? क्योंकि सीए अवेलेबल नहीं है. अभी ये अकाउंटेंट को सिखाने के बाद अकाउंटेंट ने जीएसटी का वर्किंग पूरा कंप्लीट कर लिया सर. दे हैव टू जस्ट एंटर द डिटेल्स एंड हर जीएसटी वर्किंग इज रेडी. मींस दिस फॉर्म दे हैव टू जस्ट फिल इट. जीएसटी वर्किंग का सेल्स इनवॉइस है, परचेस इनवॉइस है, देन क्या क्या डिटेल्स कौन से क्वार्टर का है, ऑल दिस डिटेल दे हैव टू एंटर एंड माय जीएसटी वर्किंग रेडी इन 3 minutes. Great. Means this entry they have to maintain it. That is one automation we did. Second is our vendor payments. That also means चाय वाला आता है, पानी वाला आता है, हर किसी का मतलब हर टाइम यू कैन नॉट हैव अ पेटी कैश सिस्टम. मीन्स तो हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया, उसमें भी सारे पेमेंट्स जो आपने बताए वो हमने सारे यूज करे हैं. नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड यूजर टाइप कौन है, मतलब सभी के एक्सपेंस एक जगह पे. ऐसा नहीं कि वेंडर के अलग से, टीम के अलग से. मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ तो मेरे भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये सारे डिटेल्स हमने यहाँ पे कैप्चर करते हैं. आगे वाली शीट पे हर एक यूजर टाइप के हिसाब से आगे का फॉर्म उनको दिखता है एंड ऑल एक्सपेंसेस गेट सॉर्टेड इन ऑल द कैटेगरीज. ये क्यों करना पड़ा मुझे सर? सितंबर में मेरा पेटी कैश वाज इज 89,000. उससे पहले इट इज 52,000 एंड उससे पहले इट वाज ओनली 22. मींस मतलब मैं आई वाज सो कंफ्यूज कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, वेयर आई एम एक्सपेंडिचर आज गोइंग हाई. अभी मेरे पास 26 कैटेगरीज है जिसमें मेरा पूरा एक्सपेंडिचर कैटेगराइज हो जाता है सर. सो दैट इज वन ऑटोमेशन वी डिड इन दिस अकाउंटिंग. अभी नेक्स्ट एचआर का भी हमने काफी सारी चीजें की है. न्यू ज्वाइनिंग का अलग, पहले तो रिटर्न फॉर्म हुआ करता था तो वी हैव गूगल फॉर्म हमने बना दिया. उसका ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर कैसे होगा उसका डिटेल किया. आपने कोटेशन ऑटोमेट कर दिया है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑटोमेट कर दिया, अब एचआर एडमिन आप दिखा रहे हैं. यस सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. क्योंकि यहीं पे मेरा सबसे ज्यादा टाइम जाता है सर. मीन्स मतलब मैं ऐसी चीजें करूं जहां पर मेरा टाइम ना जाए, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती रहे. तो ये हमने ट्रेनिंग शेड्यूल भी बनाया कि कोई बंदा आता है तो उसको ट्रेनिंग करने के लिए. दिस इज वन ऑफ द पेनफुल थिंग इन माय एंटायर 10 years. मतलब कोई भी नया बंदा लो, दोज आर मेजोरिटी टाइम फ्रेशर्स. if I train them, it take me around 6 months to train them manually because मेरी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी सर. बट अभी हम वो वीडियोस रिकॉर्डिंग की वजह से, जो आपने टूल बताया उसकी वजह से मेरा ये पूरा ट्रेनिंग 2 weeks में कंप्लीट हो जाता है सर. विद इन अ फर्स्ट मंथ माय पर्सन इज रेडी टू प्रोडक्शन. Awesome. 6 महीने का जो हमने जो ट्रेनिंग पीरियड जो रिड्यूस किया ना, दैट इज अ कमेंडेबल बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियो इन प्रॉपर एंड प्रोफेशनल मैनर. दैट्स केम फ्रॉम यू ओनली, केवल सर. Great. That's what you made of. एम्प्लॉयज का डिटेल्स यहाँ आता है,
इनवॉइस कुछ होता है तो ये सारा डिटेल यहाँ पे आता है। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा कुछ परचेस है, ये भी यहाँ पर आता है। अभी इसमें एक मैं थोड़ा सा रुक के और एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हम वी आर हैविंग अ विजन टू एस्टैब्लिश इन एवरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओह, having 5 to 10 peoples of localizing local construction projects। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे न्यू ब्रांच ऐड करने का भी हमने फॉर्म बनाया है। तो यहाँ पे उसका ब्रांच का नाम डालना होता है, कॉर्पोरेशन भी ऐड करना होता है, और ये सारी चीजें जब हमारी यहाँ आके टीम डिपार्टमेंट और कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आती है तो दोज फील्ड्स गेट ऑटोमेटिकली अपडेटेड बाय फॉर्म रेंजर्स। दैट्स व्हाई वी इम्प्लीमेंटेड, मींस मुझे कुछ भी चीज करना है तो मुझे किसी को कुछ भी नहीं बताना है। दे हैव टू जस्ट ऐड इट एंड इट विल गेट इट अपडेटेड ऑटोमेटिकली वेयर इट इज रिक्वायर्ड। और जब तक वो प्रोसीजर से काम नहीं करेंगे वो डेटा ऐड नहीं होगा। ग्रेट, ऑसम, रियली प्राउड ऑफ यू। व्हाट एल्स? आपने एचआर एडमिन दिखा दिया, ऑटोमेट किया आपने सर टीम को टास्क देने सेल्स, के लिए कुछ टूल इंप्लीमेंट किया, टास्क डेलीगेशन yes sir, that was a really awesome tool that to have implemented a task delegation tool। इससे पहले जो हम करते थे that I like to share, so you get my pain point how it was really painful it is, means this is our पूरा complete WhatsApp, हमारा पूरा टीम का WhatsApp डिटेल है सर। ये I have to get the images, put on the WhatsApp and assign somebody। अभी स्क्रॉल होने के बाद है ना ये चार्ट ऊपर चला जाता है। ना मेरा एम्प्लॉय याद रख पाता है ना मैं याद रख पाता, और जब क्लाइंट का फोन आता है तो फायर फाइटिंग शुरू हो जाती है कि इट इज रियली पेनफुल। तो इसके लिए सर हमने टास्क डेलीगेशन टूल चालू किया, जिसमें ये सारी चीजें हम टास्क डेलीगेट करते हैं। इसका हमने डैशबोर्ड भी बनाया सर। टास्क डेलीगेशन का डिटेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले गिव मी मिनट। हाँ सर, ये टास्क डेलीगेशन का मेरा टूल है और ये उसके सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। मेरा हर टास्क यहाँ पे कंप्लीटली आ जाता है। हाउ आई डू इट आई शो यू विद इन अ मिनट। असाइन टास्क यहाँ पर एमईपी डिपार्टमेंट में ही हमने ये फॉर्म क्रिएट किया हुआ है और मेरा हर फॉर्म कस्टमाइज है। जो भी डिटेल है सर आप देखेंगे फॉर्म की इमेजेस, फॉन्ट्स, इट्स अप टू ऑल द ब्रांडिंग्स दैट वी डेडिकेटेड फॉर। अभी सेम ये टास्क मैं असाइन करता हूँ खुद मुझे ही, एंड हाउ वी गेट ऑटो व्हाट्सएप ऑटोमेशन यू गेट टू सी प्रपोजल फॉर न्यू मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। ये मेरा टास्क है असाइनिंग। ये अभी मैं खुद को असाइन कर रहा हूँ कि ये मुझे आपको दिखाना है। ये मेरा आज का टारगेट डेट है। एडिशनल चेक ईमेल फ्रॉम एडमिन, एंड इसका प्रायोरिटी हाई है क्योंकि इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आज का ही है और ये मैं खुद ही असाइन कर रहा हूँ, एंड दैट वी हैव टू जस्ट सबमिट इट। सो व्हेन आई सबमिट इट, within a 2 or 3 seconds I get my WhatsApp message from my WhatsApp number that you are assigned for see sir, You this is got the this task. Yeah, the new task has been assigned to you. yes sir, yes sir, ये WhatsApp पे मुझे मैसेज आता है immediately, and from this as same as me, my all team members get these WhatsApp messages. Not only WhatsApp messages for me, to my colleagues as well who is working for that particular task, and this is linked to my task update form. These are the 2 tasks are pending. I have to select the task, work in progress, whatever the status I have to update it, kya date hai that I have to select, and just I have to update it. So whatever changes and whatever the updates what we are seeing, it's get updated immediately। and यहाँ पर अच्छी बात क्या है ना सर, ये पूरा सिस्टम फॉर्म्स पे चलता है, इंटरनेट भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा प्रोजेक्ट का भी जो मैंने टूल सेट किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टास्क डेलीगेशन का जो टूल हमने मतलब जो अडॉप्ट हुआ है, इट वाज सो सॉर्टेड, मींस
एंड ऑफ द वीक मैं बैठता हूँ, सारे डिलीवरेबल्स निकालता हूँ, वन टाइम असाइन करता हूँ, एंड इट विल गिव मी द गिविंग द अपडेट्स वन बाय वन. मीन्स जो मेरा 8-9 घंटे ऑपरेशन का जो मेरा काम होता था, अभी ये मेरा 2 घंटे 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है सर. मीन्स अभी तो हम बहुत इनिशियल स्टेज के ऑटोमेशन पे है, मतलब वी हैव जस्ट स्टार्टेड, अभी महीना भी नहीं हुआ है. तो आई हैव फ्रीड ऑफ अराउंड 60-70% ऑफ माय डेली फायर फाइटिंग टाइम. ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. इसका एक रिजल्ट बताना चाहूंगा सर. यहाँ पे मेरे मतलब मुझे शहारे आ गए सर लिटरली ये बताते समय. हमारा लास्ट ईयर का जो टर्नओवर हमने किया, दैट इज 1,15 लाख रुपीस. और ये टाइम फ्री होने के बाद जो अप्रैल में मैंने कंफर्म वर्क ऑर्डर बुक किया है, दैट इज 2,04 लाख रुपीस इन 1 month only. 1 month. That is the confirm work order we have. Means मैं फ्री था सर. I able to follow up them. I able to contact them in time, and they really loved the quotation making system. Means they have just say कि why we did you contacted. Means they mailed us within 15 minutes. I have replied. Next half an hour we communicated. We concluded. Means जहां पर कोटेशन एंड प्रपोजल फाइनल होने का जो टाइम था वो 3 दिन 4 दिन कभी कभी 2 हफ्ते, दैट इज कम टू 2 hours 2-3 hours, नॉट मोर देन दैट. मीन्स दैट इज द पावर ऑफ ऑटोमेशन आई एम फीलिंग इन माई मीन्स इन माई ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर मेरा सबसे ज्यादा टाइम जाता था सर. Congratulations. एक last system दिखाइए and then we shall wrap up the interview. Any last system that you want to show? Sir, projects Java that we है have implemented. Yes, absolutely, sir. Project that we have implemented. आप screen share कर दीजिए. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. सर यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी एक टूल इम्प्लीमेंट किया है, जहां पर ओके सर, पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं होता था, सब मैनुअल टास्क होते थे. ना ही कोई शेड्यूलिंग होता था, ना ही कोई ड्राइंग रजिस्टर होती थी. मींस ड्राइंग रजिस्टर होती थी वो लास्ट स्टेज की, हर स्टेज में कुछ भी नहीं होता था. ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल जब हमें इम्प्लीमेंट किया तो आई वाज सो हैप्पी. मींस जैसे मेरा कोटेशन फाइनल हो जाता है ना, वर्क ऑर्डर आ जाता है ना, नेक्स्ट 1 घंटा में बैठता हूँ, मेरे सारे डिलीवरेबल्स फाइनल हो जाते हैं, आगे का 45 डेज का पूरा प्रोग्राम सेट हो जाता है. मीन्स पहले एक प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए वर्किंग 70-75 डेज का टाइम जाता था. अभी ये सर हम 21 दिन में कर पा रहे हैं सर टीम के साथ में. दैट इज द एफिशिएंसी वी हैव अचीव्ड. मीन्स ये आगे जाते टाइम पे ये और भी इफिशिएंट होगा. आई विल जस्ट शो यू हाउ वी डिड इट. यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट की एंट्री करनी होती है. ये प्रोजेक्ट मैनेजर सिलेक्ट करना होता है हु इज गोइंग टू मैनेज दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. दिस इज वन ऑफ आवर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट दैट वी आर वर्किंग राइट नाउ. ये मेरा प्रोजेक्ट का शीट है सर. ये प्रोजेक्ट के यहाँ पर ये सारे डिटेल्स मुझे वन टाइम फिल करने होते हैं. यहाँ पे उसका टाइम कितना दिया है वो यहाँ पे डालना होता है. ये काम पर्टिकुलरली कौन करेगा ये डालना होता है. इसका डेट, इसका टारगेट डेट, इतना ही दैट आई हैव टू इम्प्लीमेंट इट. एंड आई हैव टू जस्ट क्लिक असाइन द टास्क. ये सारे टास्क ऑटोमेटिकली मेरे टीम को असाइन हो जाते हैं. यहाँ पर भी अच्छी बात क्या है ना सर, कि यहाँ पर भी मुझे मेरे टीम को किसी भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए कोई भी टास्क के लिए कोई भी गूगल शीट ओपन नहीं करनी पड़ती है, एक्सेप्ट माय मैनेजर. ये सारा उनके व्हाट्सएप पे आ जाता है सर. गूगल शीट का लिंक, उनका वर्क अपडेट का लिंक. जस्ट आई विल शो यू हाउ दे डू इट. ये सबके प्रोजेक्ट अपडेट्स करने के डिटेल्स है सर. फॉर एग्जाम्पल ये मेरी अर्चना कलीग है जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है. इनका फॉर्म हम देखें तो ये इस तरह से शुरू होता है. दे हैव टू सिलेक्ट द टास्क दैट दे हैव टू स्टार्ट इट. नेक्स्ट करना होता है. इसका लिंक उनके व्हाट्सएप पे आ जाता है सर. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज दैट वी आर गेटिंग. they have to just select that particular project. Pratham fire extension lab. If you can see, this is ये task है वो, that what we are selecting of. And once they have selected, started, they have to just update it.
and I get real-time updates on this particular tool. Means it not take less than a second to all update these details in my it just updated immediately. Means I don't have to call them कि इसका क्या हुआ है. And Correct. once they finish it, it will go to finishing and it is become coming in dashboard. That is मेरा plan hours इतना था, अभी इतना जा रहा है. इसके बाद सर नेक्स्ट लेवल का ऑटोमेशन अब हम तब करेंगे जब मेरा हर बंदा कितना घंटे कितना काम करता है और वो कितने रुपीस का होता है. हर एक डिलीवरेबल्स का हमारा एक अमाउंट है सर, बिकॉज ऑफ फिक्स डिलीवरेबल्स. सो आई कैन एबल टू कैलकुलेट कि मेरा एक बंदा कितने रुपीस का काम कर पाता है, हाउ मेनी रुपीस दे हाउ टू डिलीवर इन डेली. दैट्स काइंड ऑफ ऑटोमेशन. मींस आई रियली लव दिस. Before and after का बताइए कि before project और after project in terms of time saving, cost saving, effort saving. सर इसमें बहुत सारा टाइम बचा. मीन्स पहले तो कोई प्लान नहीं होता था, कोई टारगेट डेट्स नहीं होती थी. तो अभी मैं ये कर पा रहा हूँ कि मेरा एक प्रोजेक्ट कैन बी डिलीवर्ड इन 21 days, जो कि 70-80 दिन होता था. मीन्स इट्स अराउंड मतलब 3 times मोर टाइम सेव हम कर रहे हैं. वी Faster. आर इंक्रीज आवर इफिशियंसी मोर देन लाइक एनीथिंग. मीन्स आई मस्ट से कि अभी हम कहाँ स्केल कर पाएंगे. थैंक्स टू यू कि ये सब आपकी वजह से हम कर पाए सर. Great. I really fan of all these automations that we are implementing with you and your team तो support. आपका क्या मैसेज है उन सब बिजनेस ओनर्स को जो फायर फाइटिंग कर रहे हैं आज के टाइम पे? सर ये पहली बात तो पहला तो ये पूरा डिजिटलाइजेशन का जमाना है. आप अपना अभी नहीं बदलोगे तो आपको समय बदल देगा सर. या फिर आप ये समय से निकल जाओगे, नहीं भाग पाओगे सर उस स्पीड से. तो मेरा मैसेज यही है पूरे एंटरप्रेन्योर्स को कि ऑटोमेशन कर लीजिए और जिंदगी बचाइए अपनी जो भी बची है. मींस यू कैन एंजॉय योर लाइफ. मैंने देखा है सर 19 hours a day काम करके हमने देखा है. एंड अभी जो हम एंजॉय करते हैं दैट इज रियली ऑसम. मींस रियली ऑसम. मतलब मेरा 19 hours का 8 घंटे पे आया है सर. दैट इज द अचीवमेंट आई डिड इन 1 month. Awesome. Congratulations. And this was Prashant from Pune, who automated his entire business in just 1 month by being consistent in the MBA program. So if you're somebody who want to automate your business, go ahead, begin your journey. And I want to congratulate Prashant that you have been selected in Achiever Club. You shall receive a trophy as well. And very soon we shall be showcasing this interview to our community as well, so that other students also can get motivated and they can also grow their business. और जैसे आपने बोला कि अभी तो कहानी, अभी तो जर्नी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. So I'm going to be there with you in this upcoming journey, upcoming sessions, upcoming months as well. So let's take and make the entire company system driven. Wish you all the best. Thank you so much for this opportunity.